So let us start. Now, I hope that this is your first online EEPW class in physics. Okay. This module is prepared by Narayana Institute. And why we are going to read it? Because this module is among one of the best, is prepared by one of the best institute for preparing student for upcoming examinations like joint, NEET, etc. And you will be benefited by going through this module. You will get the confidence in you to solve any type of problem in physics and other subjects. Today is our first class. This is an introductory class, and why we should go through this module I am going to tell you in details. Okay, the topics which will be covered in this module in physics section is displayed here. You will get, obviously you will get a video link after this session to clear your doubts. Okay, so now we are going to start. If you have any doubt or any problem while doing our work, you can just put on your mic and ask me directly. Okay, you may ask it in English or in Hindi, no issues, no matter. Okay, the topic we are going to learn first is vectors, a very most important thing in physics. Once you grab it, you can solve many of the problems. Once you grab it, you can do many of the problems. So vectors is distributed into two worksheets, worksheet 1 and worksheet 2, along with the synopsises. Okay, so we are going to start our first topic, vector. Now, the concept of the flowchart. This is the basic concept of flowcharts. Now, physical quantities is divided into two types. One is scalar and number 2 is vector. One is scalar, number 2 is vector. Now, scalar is again of two types, with units and without units. With and without units. Vector is in vector we are going to learn types of vectors and operations in vectors. Types of vectors and operations of vectors. Okay. Please write your name. Those who have joined right now, write your name in the comment section. Please write your name in the comment section, please. ओके, हम हिंदी में ही बोलते हैं, बच्चों का कई कई का लिखना है कि हिंदी में बोलिए सर एक बार. देखो, फिजिकल क्वांटिटी पहले हम लोग समझेंगे. फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर. फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं. पहला वाला स्केलर and the second one is vector. Scalar is again of two types, with units and without units. In vector section we will find two things, that is types of vectors and operation. Operation of vectors basically comprises two operations, that is addition and multiplication. Vectors के अंदर हम लोग देखेंगे types of vector और वेक्टर को कैसे ऑपरेट करते हैं. ऑपरेट मतलब वेक्टर से हम लोग कैसे वैल्यूज वगैरह निकालते हैं. ठीक है ना. अब ये ऑपरेशंस बेसिकली टू टाइप्स का होता है. पहले वाला तो हो गया एडिशन एंड सेकंड हो गया मल्टीप्लिकेशन. बस यही दोनों है वेक्टर में. डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन नहीं है. क्यों नहीं है सब्सट्रैक्शन बाद में बताएंगे, और डिवीजन होता ही नहीं है. ठीक है ना. Addition of vector is dependent on some laws. What are these laws? There are three laws. Number 1, parallelogram. नंबर 2 ट्राइंगल लॉ. नंबर 3 इज पॉलीगॉन लॉ. इसका मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये तीन लॉ के अंदर आता है इसमें. ठीक है ना. तीन लॉ पढ़ना जरूरी है एडिशन ऑफ वेक्टर्स को समझने के लिए. पहले वाला लॉ क्या हो गया, पैरेललोग्राम लॉ. सेकंड इशू क्या हो गया, ट्राइंगल लॉ. थर्ड इशू क्या हो गया, पॉलीगॉन लॉ. ठीक है. और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है. वेक्टर प्रोडक्ट में भी हो गया आपका दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर. फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट and the second one is cross product. डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में हम लोग सिर्फ एक डॉट लिखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे लिखते हैं.
आपको इससे पहले ये मालूम था, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 4 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या लिखते थे 12, और अगर 4.3 भी लिखते हैं उसको भी हम लोग बताते हैं 12। लेकिन वेक्टर में दोनों का मतलब अलग है, वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन में दोनों का मतलब अलग है। अगर ये साइन इस्तेमाल कर लिया आप, तो वो जो राशि आपको मिलेगा वो हो जाएगा एक स्केलर राशि, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर क्रॉस में बताओगे आप, तो ये हो जाएगा आपका एक वेक्टर राशि। कैसे होता है क्या नहीं, ये आप 9 में जाके सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही जान लो कि वेक्टर प्रोडक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, नंबर 2 होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। पहले हम लोग को ये मालूम था कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्रॉस से भी लिख सकते हैं और डॉट से भी लिख सकते हैं, लेकिन अब नहीं। अब वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन आप लोग अगर करोगे तो दो टाइप का, दो अलग मीनिंग होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए ना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में तीन टाइप के लॉ आपको बताया गया है, एक पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। और ट्रायंगल लॉ में भी हम लोग देखेंगे लेमिस थ्योरम, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो हमको बताइए, अपना माइक ऑन करके, अगर किसी को कोई डाउट है तो हमको बताइएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज स्विच ऑन योर माइक्रोफोन एंड जस्ट आस्क मी। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। चैट में बार बार नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ ना, तो चैट में आप नहीं बताओगे, आप जस्ट डायरेक्ट मेरे को माइक्रोफोन ऑन करो अपना और मेरे को पूछो जो भी पूछना है। यहाँ तक, अप टू दिस यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ओके। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर अस। बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? लेमिस थ्योरम आपको बाद में पता चलेगा बेटा, एक थ्योरम होता है, ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ के ऊपर है, ठीक है। इसमें साइन ऑफ एंगल के रेशियो बताया जाता है, आपको बताएंगे बाद में, ठीक है बेटा। ओके, ना स्केलर किसको बोलते हैं, अब वेक्टर्स किसको बोलते हैं, पहले ये बात को समझेंगे हम लोग। स्केलर वो राशि है जिनके जिनके पास सिर्फ वैल्यूज होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड्स होते हैं ओनली, और कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स, मतलब वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली, न्यूमेरिकल वैल्यूज, नो डायरेक्शन। और वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर में आपको बोथ मैग्नीट्यूड, वेक्टर में आपको बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस दोनों ही मिलेंगे आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों ही आपको मिलेगा। तो अगर कोई राशि में मैग्नीट्यूड भी रहता है, उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेक्टर्स। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है तो हम उसको बोलेंगे स्केलर, ठीक है। अब अगर पूछोगे हमको कि सर अगर कोई राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर ही कहलाएगा क्या हमेशा? अगर ये आप पूछते हो तो मेरा जवाब है नहीं, नो। यू can't call any physical quantities having both magnitudes and direction simply a vector। वेक्टर होने के लिए ये जो लॉ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लॉ को आपको मतलब ओबे करना पड़ेगा। यू हैव टू ओबे दीज थ्री लॉज, आइदर ऑफ दीज थ्री लॉज। आपको ये तीन लॉज, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ, ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा एडिशन में, तभी आप वेक्टर बन पाओगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो आप बन जाओगे जो राशि, उसको हम बोलते हैं टेंसर। उसको क्या बोलते हैं, टेंसर, ठीक है। अब टेंसर क्या चीज है, टेंसर वही चीज है जो मैग्नीट्यूड रहता है, जिसके पास डायरेक्शन भी रहता है, लेकिन वेक्टर का कोई भी रूल वो फॉलो नहीं करता, वेक्टर का कोई भी नियम वो उसके ऊपर लागू नहीं होता, ठीक है ना। जो भी आ रहे हो, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, आप लोग प्लीज अपना नाम लिख दीजिए चैट सेक्शन में, ताकि मैं अटेंडेंस रख सकूं। हैव यू अंडरस्टूड अप टू दिस, क्लियर? Any problem, any doubt, just switch on your microphone and ask me. ईपीडब्ल्यू के लिए अलग से बनेगी बेटा।
हाँ तो उसी में करना है आपको, उसी में करना है, ठीक है ना। आपको ये जो किताब है स्कूल में आपको जाके फीस जमा करना पड़ेगा और ये किताब लेके आना पड़ेगा स्कूल से, ठीक है ना। ये किताब आपको पूरा मॉड्यूल सेट स्कूल से ही मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, ये बुक की तहत है, एक बुक की तरह मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो उसी में से आप भी पढ़ पाओगे और हम यहाँ पढ़ा देंगे आपको, तो आसानी होगा ना दोनों तरफ से। जो चीज यहाँ नहीं मिलेगा उसके लिए तो हम है ही हैं टीचर्स। We will help you to know more and more knowledge, to gain more and more knowledge on the specific topics. Okay, so no need to fear. Okay, now अब स्केलर के अंदर हम लोग देखेंगे विथ यूनिट्स का एग्जाम्पल और विदाउट यूनिट्स का एग्जाम्पल। विथ यूनिट आपको तो मालूम ही है, जैसे हम लोग पूछ रहे हैं कि मास, यूनिट ऑफ मास क्या है, ऐसा यूनिट आप बताओ। मास का ऐसा यूनिट है तो होता है केजी। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। अब इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है। आप दुकान में जाओगे और दुकानदार को क्या पूछते हो कि हमको 1 किलो आलू दो या 2 किलो मिठाई दो, ऐसे बोलते हो ना। हम लोग थोड़ी ना ऐसे बोलते हैं कि हमको भाई 2 किलो मिठाई दो ऊपर की तरफ, या फिर 1 किलो आलू दो दाएं की तरफ, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। हम लोग सिर्फ मास को बोल देते हैं कि हमको 1 किलो आलू दे दो, हमको 2 किलो मिठाई दे दो, ठीक है ना। किस और आप घूम के दोगे, क्या दोगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग, नहीं बोलते हैं। तो इसमें देखो आपको सिर्फ एक वैल्यू मिल रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रहा है, जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसे ही जो यूनिट्स जिसमें सिर्फ वैल्यूज है और उसके साथ यूनिट्स भी है, उसको हम लोग स्केलर राशि विथ यूनिट्स बताएंगे। ये वाला स्केलर राशि विथ यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब विदाउट यूनिट्स क्या होता है, अगर कोई क्वांटिटी दो सेम क्वांटिटीज के रेशियो होता है, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, जो भी हमको मिलेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा एक प्योर नंबर, वो हो जाएगा एक प्योर नंबर। सो उसमें क्या नहीं रहेगा, नो यूनिट, उसमें कोई यूनिट आपको नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के जो राशि है जहां पे सिर्फ आपको वैल्यूज मिलेगा, कोई यूनिट नहीं मिलेगा, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर विदाउट यूनिट्स, ओनली वैल्यू। नो यूनिट एंड नो डायरेक्शन। क्लियर हो गया आपको यहां तक? ठीक है। अब जो चीज हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ आ गया ना यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कोई किसी को डाउट है? एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? प्रिंस, प्रिंस, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, सो आई एम कंटिन्यूइंग विथ माय टॉपिक। ओके, देखो अभी आपको बताया कि स्केलर राशि होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, physical quantities which have only magnitude, physical quantities which have only magnitude but no direction are called scalar quantities or simply called scalars। इसके एग्जांपल देखो, 2 kg sugar tells us about the magnitude of its mass but has no direction। क्लियर? वैसे ही मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर फ्यू एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। अभी अभी आपको बताया ना कि 2 किलो आलू के लिए आप पूछोगे
तो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, आप थोड़ी ना पूछोगे। आप सिर्फ बताओगे दुकानदार को, भैया मेरे को 1 किलो आलू दे दो, या 2 किलो मिठाई दे दो, आधा किलो मिठाई दे दो, है ना। आप ऊपर चढ़ के दो, नीचे बैठ के दो, जमीन पे लेट के दो, ऐसा थोड़ी ना हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। सिर्फ उसका एक वैल्यू पूछते हैं हम लोग। तो वही चीज क्या हो गया, वही चीज है स्केलर, मतलब जहां पे सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड मिलेगा और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। और स्केलर को हम लोग ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ऑर्डिनरी अलजेब्रा का जो लॉज है उसमें, जैसे मान के चलो कोई भी राशि है 5 डिवाइडेड बाई 4, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1.25, कोई इशू नहीं है। तो स्केलर में कोई इशू नहीं होता है, स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हम लोग नॉर्मल अलजेब्रिक जो लॉज है उसी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्केलर की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब निकालने के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो माइक ऑन करके बताओ, बोलो बोलो। हाँ जी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और देखो, a scalar is specified by a number and unit. When number represents its magnitude, number represents its magnitude, that is its value. ओके, मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्केलर में आपको सिर्फ एक नंबर चाहिए होगा, एक वैल्यू, और उसका यूनिट अगर हो तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, ठीक है। स्केलर में भी, a scalar may be positive or negative. A scalar can be represented by single letter. Scalar can be represented by a single letter. That is, if we write length, we can use the symbol L. L equals to 5 meter. So this is the value or magnitude. So this is the magnitude and this is the unit. So this is a scalar quantity. Okay, this is the scalar quantity. Now our next topic is vectors. We have our next topic on vectors. Okay. Now अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अभी आपको बताया ना कि जो राशि, जो फिजिकल राशि, द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड द वेक्टर्स। दे आर कॉल्ड द वेक्टर्स क्वांटिटी और सिंपली कॉल्ड वेक्टर्स। They should also obey law of vector addition. I have just mentioned. आपको अभी अभी बताया ना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से ही कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाता। उसको वेक्टर होने के लिए लॉ ऑफ एडिशन में जो 3 लॉ आपको बताया ना, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ, ये लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होता है, इसका मतलब उसको, उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है ही है, तो इसके साथ साथ वो ये तीनों जो लॉज है, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ एंड ट्रायंगल लॉ, ये तीनों लॉ को फॉलो करेगा ही करेगा, तभी जाके वो वेक्टर बन पाएगा, नहीं तो वो टेंसर कहलाएगा, वो टेंसर कहलाएगा, ठीक है। हम लोग बाद में इसको और अच्छी तरह से समझेंगे कि टेंसर क्या है और वेक्टर क्या है। हालांकि ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एग्जांपल्स देख लो आप, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब वेक्टर्स में एग्जांपल्स है वेक्टर्स के। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी अलजेब्रिक लॉज। ओके, वेक्टर को हम ऑर्डिनरी अलजेब्रिक लॉज में ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट ये सब नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमको हमको चाहिए, क्या चाहिए, स्पेशल लॉज, जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, ठीक है, यही लॉ के तहत होता है। और मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। तो नॉर्मल अलजेब्रिक लॉज ये फॉलो नहीं करता। अब वेक्टर लिखते हैं कैसे, देखो कई कई जगह आपको मिलेगा ऐसे। मान के चलो हम लोग कोई डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एस, ऐसे दिख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा बोल्ड में देख सकते हो आप, बोल्ड में, ठीक है ना।
अगर बोल्ड लेटर है तो भी वेक्टर कहलाएगा, ऐसे टाइप के एरो हेड है तो भी वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पे है देखो दोनों ही दिया हुआ है, बोल्ड एरो हेड दोनों, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? इसके आगे हम जाएंगे अभी। Geometrically or graphically, a vector is represented by a straight line with an arrowhead, that is arrowed line. Here the length of the arrowed line drawn on a suitable scale represents the magnitude and the arrowhead represents the direction of the given vector. जैसे हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी वेक्टर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एरो हेड में रिप्रेजेंट करते हैं। एरो जहां से शुरू होता है, जो इसको टेल कहते हैं, ये जगह को हम लोग टेल बोलेंगे, इसको एरो की टेल बोलते हैं, ठीक है ना, टेल। और ये है हेड, एरो की हेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट ए से लेके सी तक जा रहा है, ए से लेके सी तक जा रहा है। द एरो हेड एट सी शोज दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू सी। अभी आपको बताया ना, ये देखो लिखा हुआ है, ए से लेके सी तक कोई जा रहा है, ठीक है, समझ गए? तो ऐसे होता है वेक्टर्स का जो बेसिक चीज है, ये सब यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल या कुछ? चलो कोई नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर में दो टाइप देखे थे ना, वेक्टर में एक हो गया था आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और दूसरा हो गया था ऑपरेशंस। अभी हम लोग फ्लो चार्ट के तहत टाइप्स में है, ठीक है। ऑपरेशंस में हम लोग देखे थे, क्या क्या देखे थे, एडिशन देखे थे और मल्टीप्लिकेशन देखे थे। एडिशन के अंदर हम लोग देखे थे तीन लॉज, क्या क्या देखे थे, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल एंड पॉलीगॉन। और ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या देखे थे, लैमिस थ्योरम, ठीक है। ये सब ऑपरेशन हम लोग बाद में करेंगे, अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर में जाएंगे। कहाँ पे, फ्लो चार्ट के तहत टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। okay. चलो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर, पहली वाली वेक्टर्स, हाँ बोलो। मल्टीप्लाई के नीचे हम लोग आपको बताया ना, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन वो बाद में आप 9 में जब जाओगे ना तब सीख लोगे। अभी 8 में वो आपके सिलेबस में शायद नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको उसके विषय में नॉलेज दे देंगे, ठीक है ना, हम दे देंगे आपको, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, कोई इशू नहीं, लेकिन बाद में, पहले ये सब खत्म कर लेते हैं, ठीक है। So first type of vector is equal vector. Now what is equal vector? If two vectors have same magnitude, ध्यान रखना, same magnitude and same direction, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल वेक्टर्स बोला जाए, मतलब हम इसको इक्वल वेक्टर बोल पाएंगे। इफ टू वेक्टर्स, लेट ए इज अ वेक्टर एंड बी इज अ वेक्टर, यहाँ पे ए भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए इक्वल वेक्टर के लिए, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी जाके इसको हम बोल पाएंगे इक्वल वेक्टर। अगर ये दो कंडीशंस है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम, तो इसको हम बोल पाएंगे इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स में क्या होता है, लाइक वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट, मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट, बट डायरेक्शन होता है सेम, डायरेक्शन होता है सेम। ये हम आपको चीज दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये दोनों आपके पास है तो आपको लाइक वेक्टर्स बताया जाएगा, नॉट इक्वल वेक्टर। तो ये दोनों में अंतर क्या है, इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर में डिफरेंट ये है कि मैग्नीट्यूड दोनों का अलग होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो इक्वल वेक्टर्स बताया जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया तो लाइक वेक्टर बताएंगे हम उसको, ठीक है। लाइक वेक्टर यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड
equals to different but direction equals to same. यहाँ पे क्या था? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम ही था। ठीक है, अब देखेंगे 3 नंबर वेक्टर जिसको बताया जाता है कि अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स किसको बोलते हैं? देखो, लाइक वेक्टर में क्या दिखाया गया? मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है। अनलाइक में दोनों ही अलग है। पहली बात तो मैग्नीट्यूड है डिफरेंट, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका डिफरेंट, और डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट, डायरेक्शन हो जाएगा आपका ऑपोजिट टू ईच अदर। देखो, ए वेक्टर अगर इस साइड में है, बी वेक्टर इस साइड में है, तो डायरेक्शन क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। और मैग्नीट्यूड देखो, ए अगर 2b है और ये b है, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन ऑपोजिट, इसको कहेंगे अनलाइक वेक्टर। मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन सेम, इसको कहेंगे लाइक वेक्टर। और मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, इसको कहेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब चौथी टाइप का वेक्टर, चौथी टाइप में बताया गया है, देखो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट, इसको कहेंगे हम लोग नेगेटिव वेक्टर। इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। और मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड डिफरेंस, डायरेक्शन ऑपोजिट, इसको कहेंगे अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर को कहेंगे मैग्नीट्यूड डिफरेंस, डायरेक्शन सेम। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं। बोलो किसी। अनलाइक वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट, डायरेक्शन होता है ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट, पहली बात तो है मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, दूसरी बात डायरेक्शन जो था वो अलग होगा। ठीक है ना, एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, एक दूसरे की ऑपोजिट में हो जाएगा डायरेक्शन। और नेगेटिव वेक्टर क्या कहता है? नेगेटिव वेक्टर बताता है कि भैया मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है ना वो ऑपोजिट रहेगा। देखो, इन दोनों में अंतर समझो, इन दोनों में यहाँ पे देखो, ये अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर कब बन जाएगा? कोई वेक्टर अनलाइक हम कब बोल सकते हैं? जब उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा और उसका डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट। अब नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड, भैया आपको सेम बनाना पड़ेगा, सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा आपका ऑपोजिट। तो डायरेक्शन ऑपोजिट दोनों ही में है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया तो अनलाइक वेक्टर कहलाएगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। समझ गए आप? डाउट क्लियर और नॉट? ओके, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? यूनिट वेक्टर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना, कोई दिक्कत आएगा तो हमको बताना। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि कोई अगर वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड, इसको कहते हैं मॉड, ये जो साइन बनाया ना हमने, इसको कहते हैं मॉड, दिस इज कॉल्ड मॉड। ठीक है, इसको कहते हैं मॉड और मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका यूनिटी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यूनिट, दैट इज इट्स वैल्यू विल बी 1। ओके, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मान के चलो आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड
इनटू उसकी यूनिट वेक्टर। ये हो गया वैल्यू, मैग्नीट्यूड। और ये वाला हिस्सा जो देता है, ये देता है डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन, ठीक है। समझ गए? सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर वी डू नीड टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड वन इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज गिवन एज, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्शन के लिए हम लोग एक कैप लगाते हैं, इसको बोलते हैं कैप, कैप, ए कैप, ठीक है। सो ए कैप इंटू इस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अ वेक्टर, दिस विल बी अ वेक्टर। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो हम आगे बढ़े। हाँ ठीक है, समझाते हैं। देखो, कोई वेक्टर, कोई सा भी वेक्टर, अगर ए वेक्टर मान के चलो, इसको हमको डिफाइन करना होगा, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? एक मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और एक डायरेक्शन वाला चीज चाहिए होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं मॉड। ये जो वैल्यू देता है ये मैग्नीट्यूड देता है। और डायरेक्शन के लिए हम लोग इसका यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर यूज करेंगे, इसको बोलते हैं यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर्स में आएगा, यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर्स में आएगा, ठीक है। ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो एक वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब कोई सा भी स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर हम लोग कोई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर में आएगा। फिर से दोहराता हूं, अगर कोई स्केलर राशि के साथ हम लोग कोई यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो एक वेक्टर होगा, ना कि स्केलर। समझ गए आप लोग? गॉट इट? ओके। अब कोई इशू नहीं है तो यूनिट वेक्टर को लेके? ना, ये वाला चीज को देखो आप, अ वेक्टर पैरेलल टू अ वेक्टर, a vector parallel to a vector having magnitude same as that of b vector is given by this, is given by this। ये आपको बाद में समझ में आएगा कि ये क्यों होता है। कोई एक वेक्टर मान के चलते हैं, एक सी वेक्टर है, जो कि ये सी वेक्टर है, एक दूसरा एक वेक्टर है ए वेक्टर की पैरेलल है, मान के चलो ऐसा हम लोग लेते हैं, पैरेलल नहीं हुआ, ठीक है। ये मान के चलो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। सॉरी, ये सी वेक्टर होना चाहिए, ये सी वेक्टर है। बताया जा रहा है कि सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर एंड हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर and has a magnitude of another vector b vector, then c vector can be written as this। इसका मतलब हो गया कि c का जो मैग्नीट्यूड है वो b के समान है और c जो है a का पैरेलल है, c जो है a का पैरेलल है और इसका मैग्नीट्यूड जो है v है। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको आप बाद में समझोगे, अभी नहीं समझ पाओगे आप लोग, ठीक है। अब जो आती है वो है जीरो वेक्टर। अब जो है वो है जीरो वेक्टर। अ जीरो वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जैसे मान के चलो अगर इसका हम मॉड निकालेंगे, अगर जीरो आएगा किसी भी तरह से, तो इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं नल वेक्टर। क्लियर हो गया? इसका कोई एग्जांपल देखो,
जैसे वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ बॉब एट ए सिंपल पेंडुलम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर का वैल्यू 0 होता है। कैसे होता है एक बार समझा देते हैं, फिर आज का क्लास यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सैटरडे को है मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लास। अभी देखो इसको समझाते हैं। मान के चलो ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से आप अगर कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, ऊपर की तरफ, एकदम ऊपर की तरफ कोई बॉल फेंकते हो, मान के चलो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। यहां जाके फिर क्या होगा, ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको इस पोजीशन पे, इस हाईएस्ट पॉइंट पे ये मोमेंटरली रेस्ट में आता है। मोमेंटरली रेस्ट पॉइंट बोलते हैं हम लोग, रेस्ट होता है। क्योंकि देखो यहां से जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो डायरेक्शन कहाँ था, यहाँ पे। अब यहां जाके रुकेगा तभी तो वो घूम के नीचे की तरफ आएगा, उससे पहले तो नहीं आ पाएगा। तो जैसे ही इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक नाल वेक्टर है। इसका मतलब ये एक नाल वेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली अगर पेंडुलम को देखें, पेंडुलम का जो एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या होता है देखो, यहाँ पे मान के चलो ये सीलिंग है, सीलिंग से ये एक पेंडुलम यहाँ पे है, पेंडुलम मान के चलते हैं कि एक पेंडुलम यहाँ पे, और ये दोनों इसका हाईएस्ट पॉइंट है। मतलब अगर आप इसको स्विंग करते हैं तो पेंडुलम इस रास्ते यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये रास्ते, ये वाला रास्ता जो है इस रास्ते से वो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स, और इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो जब हम पेंडुलम को यहाँ लेके जाते हैं और छोड़ते हैं, छोड़ने के समय क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। अब पेंडुलम यहाँ से आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, मैक्सिमम, फिर मोमेंटम के तहत यहाँ तक पहुंचेगा, और यहाँ पे फिर वेलोसिटी 0 होगा ताकि वो दोबारा इस साइड में आ जाए। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए आप, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 तो वैल्यू 0 आएगा, तो ये वेक्टर भी नल वेक्टर और 0 वेक्टर बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमको बता दीजिए, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आज के क्लास का, ताकि आपका जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो सके, आप घर में भी दोबारा इसको पढ़ पाओ, ठीक है। व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा। ओके।